बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान तस्लीम शुदा एटमी ताकत है। एटमी सलाहियत के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई के खौफनाक नताइज बरामद होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त न कर सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा TV को इंटरव्यू। कहा, भारत की बेमानी इल्जाम तराशी की वजह से कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। कोई भी वाकया पाक भारत जंग की वजह बन सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान जरूर जवाब देगा। एक सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल फायदा भारत को है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत डोवल है। Are an established and declared nuclear power. And the world has no experience going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. This senseless blame game that the Indians are resorting to, it is bringing the thresholds between India and Pakistan to dangerously low level, at such levels that where one incident of terrorism or an act of violence can be turned into an act of war. As far as the response is concerned, let me make it absolutely clear. The response would be there. Our response will show and speak for itself, as always, loud and clear. The important question is that who is the beneficiary over here by these acts of terrorism in Pakistan? It is India. The strategy of India is to keep the Pakistan embroiled in this menace of terrorism. Pakistan is not only fully committed to fight this menace of terrorism, we are also fully committed to uproot this extremism. Who is the chief architect of this terror enterprise? It is Mr. Ajit Doval. He is that evil chief architect of that terror enterprise, of every terror incident that happens inside, not only in Pakistan, but the region and the transnational killing. बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, चाहता हूं बर्रे सगीर की नई नस्ल माजी में फंसी ना रहे। बर्रे सगीर में दहशतगर्दी की बुनियाद अफगान जिहाद में है। मगरिब और जनरल जिया ने समाज की जिहाद साजी की। भारतीय सहाफी करण थापर को इंटरव्यू में साबिक वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। दहशतगर्द हमलों में 92,000 जानें गंवाईं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ग्रुपों को सपोर्ट नहीं करता, दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं। To see my generation that actually forms the majority of the populations on both sides of the border to be trapped by the past. And Pakistan, along with the international community and the dictator General Zia al-Haq, orchestrated the jihadification of Pakistan as a society so that we could fight their war in the context of Afghanistan. हम आज तक क्यों सफर कर रहे हैं? ना सिर्फ LET और LEJ के कॉन्टेक्स्ट में, मगर मेला मुल्क में, TTP के कॉन्टेक्स्ट में, अलकायदा के कॉन्टेक्स्ट में, दाइश के कॉन्टेक्स्ट में, BLA के कॉन्टेक्स्ट में. This entire issue of terrorism that we are facing in the subcontinent today is a direct result of what happened in Afghanistan. This is the past. This is what happened in the past. Then Pakistan went through an entire process. And that process India is ignoring. Every Pakistani is a terrorist. Every Pakistani is your enemy. That is not true. We want peace. We can talk together and sort out all our issues. I don't believe that the people of India and the people of Pakistan are destined to be enemies. I don't want to damn the people of India and the people of Pakistan, not very least the next generation, to fight generation after generation over Kashmir, to fight generation over terrorism, and to fight now generation over generation over water. I am a victim of terrorism. I want to see an end to terrorism. It's far easier for the older generations to talk of war, to be stuck in the past. But now, when younger generations like myself will chart a new destiny for our people. PTI के लिए हमेशा से नरम गोशा है। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, PTI का मुजाहिरा हुकूमत के लिए नहीं, मुल्क के लिए खतरा है। PTI कानून के मुताबिक एहतजाज करने को तैयार नहीं, उनके इरादे हमें पता हैं। वज़ीर आला KP के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लानी चाहिए।
दिल में नरम गोशे की बात है, वो हमेशा से है। डेमोक्रेसी जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं बढ़ती। ये हुकूमत के लिए खतरा नहीं है, ये मुल्क के लिए खतरा है। वो आइन और कानून के मुताबिक कोई प्रोटेस्ट करने को तैयार नहीं है। जो उनका इरादा है उसको हम बखूबी समझते हैं वायलेशन। अच्छा, वो मुल्क को जाम करना चाहते हैं। के खिलाफ बिल्कुल अदम एतमाद की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल उन्होंने अपना बयान दिया होगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से उनकी कोई ऐसी बात नहीं। तहरीक चलाएंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। हलफ बर्दारी की तकरीब में गया था, गवर्नर से मिलने नहीं, मुलाकातें नहीं छुपाता। ये तहरीक अपनी कामयाबी तक पहुंचेगी। खान साहब रिहा भी होंगे। खान साहब ने किसी जगह का नहीं बताया। जगह का और हर चीज का फैसला हमने करना है। ऑल ओवर पाकिस्तान का कहा गया कि हम इस दफा तहरीक शुरुआत करेंगे। बात यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का हल्फ था, तो मैं उनके हल्फ पे गया था। अब मुलाकात उसको कहना स्पेशली सिर्फ गवर्नर साहब को मिलने जाऊं। मैंने कोई इस तरह की मुलाकात करनी भी हो ना, तो मेरी एक आदत है, मैं मुलाकातें छुपाता नहीं हूं। 100 बार एहतजाज करें, सिक्योरिटी भी देंगे। चढ़ाई की तो 26 मई से ज्यादा मुरम्मत करेंगे। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई के बच्चों को आना चाहिए, लेकिन आएंगे नहीं। उनके बच्चों को आना चाहिए और उनके बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके वालिद ने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया। लेकिन ये आएंगे नहीं। 100 बार एहतजाज करें, सिक्योरिटी भी देंगे, ध्यान करेंगे। और अगर किसी किस्म की आपने चढ़ाई की, लाकानूनियत की कोशिश की, तो 26 मई से मुरम्मत करें। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। सहाफ़ी ने पूछा, एक तरफ एहतजाज की कॉल, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बातें, कौन सा रास्ता दुरुस्त है? परवेज इलाही ने कहा मज़ाहमत के बाद मुज़ाकरात ही होते हैं। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। बात हो रही है कि सदर को तब्दील किया जा रहा है और कोई तरमीम 27वीं भी आ रही है। मैंने तो आपसे सुना है। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ 5 अगस्त की बात की जा रही है। रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ामत वाला? देखें, ज़ाहिर है मज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, जब मशावरत हो चलेगा। सदर जरदारी को हटाने की बातें फेक न्यूज़ और अफवाहें हैं। हुकूमत ने भी ऐसी बातों की तरदीद की है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा आसिफ अली जरदारी ने हर गैर आइनी काम के खिलाफ मुजाहमत की है, वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। साहब से मुतालिक बातें आ रही हैं और गुज़िश्ता एक हफ्ते से उसके ऊपर स्पेकुलेशन चल रही है। असद क्या है इन खबरों का और आप तरदीद करती हैं इसकी? जी बिल्कुल, मैंने ऑन रिकॉर्ड भी तरदीद की है, हुकूमत ने भी तरदीद भी। पता नहीं है शोशे कहाँ से आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सदर जो आसिफ जरदारी हैं, सारी जिंदगी रेजिस्टेंस की है किसी भी ऐसे कदम की जो गैर आईनी हो, तो वो आइन के जामिन हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कराची में फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा की लाश 6 माह पुरानी निकली। लाश इतनी पुरानी थी कि घुटनों के जोड़ भी गलना शुरू हो गए। लेडी मेडिको लीगल अफसर ने फ्लैट से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। बताएगा नजीर, मजीद क्या पता चल सका है? बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या डिफेंस फेज 6 में पेश आया था, जहाँ पर जो मारूफ जो फनकारा थी, मॉडल थी हुमैरा असगर अली, उसकी लाश से इंतहाई सोख्ता हालत में मिली थी। इस लाश के हवाले से हमने इन्वेस्टिगेशन की और मुकम्मल तौर पर तहकीकात की, जिस पर एक पैकेज बनाया था। वो पैकेज देख लें, उसके बाद फिर हम आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दें कि ये लाश कोई 15 रोज़ या 1 माह पुरानी नहीं, बल्कि 6 माह पुरानी निकली है। और ये हैरतनाक जो था वही आपसे कुछ देर कबल आया, लेकिन पहले पैकेज देख लें प्लीज़। पड़ोसियों ने यही कहा कि जी डिप्रेशन का एलिमेंट होगा, कोई चीखने की आवाज़ें फ्लैट से आया। शोबिस की चकाचौंध दुनिया में रहने वाली अचानक घुप अंधेरे में चली गई। मॉडल हुमैरा असगर अली की मौत ने सबको चौंका दिया। गैर तो गैर अपनों ने भी मुंह फेर लिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता ना चल सका। फैमिली के साथ राब्ता हुआ है, अब तक उन्होंने कोई ऐसा मुस्बत जवाब नहीं दिया कि लाश कलेक्ट करेंगे। केमिकल एग्जामिनर की अगर उसमें कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं या कॉज ऑफ डेथ डिटरमिन होता है, प्रोसीडिंग बनती है कॉग्निजेबल, तो फिर की जाएगी।
पुलिस अफसरान का कहना है पड़ोसियों ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान बताया कि अक्सर फ्लैट से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। डिप्रेशन का शायद एलिमेंट होगा, चीखने की आवाजें और इस तरह से फ्लैट से आया करती थी। कोई ऐसी चीज़ खाने या पीने की वजह से कोई या तो रिएक्शन हो गया है, इसकी वजह से जो है वो शायद डेथ हो गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद लाश सरखाने में रखवा दी गई। पुलिस का कहना है अगर फैमिली ने राब्ता ना किया और मौत तबाही ना निकली तो सरकार मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मॉडल हुमैरा असगर की मौत तबाही थी, किसी नशे का ओवरडोज या कत्ल का वाकया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असल सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। बिल्कुल, आपने जो अब तक जो पेशरफ थी और तफसीली जो रिपोर्ट थी वो आपने देखी और ये आज दोपहर तक की जो तहकीकात थी जो हमने आपको एक पैकेज के जरिए बताई। अब जो अहम पेशरफ सामने आई है, अब से कुछ देर कबल इस फ्लैट को सील किया गया जो अदालती बैलिव था। गुज़श्ता रोज़ उसने मजीद कानूनी कार्रवाई से पुलिस को इसलिए मना किया था क्योंकि वो फ्लैट खाने की नीयत से वहाँ गया था, लेकिन आगे जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो वहाँ पर हुमैरा असगर अली की ऐसी लाश मिली जिसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए कि उसमें कीड़े पड़े हुए थे और अंदाज़ा मुश्किल था कि ये किसकी लाश है। जब वहाँ से दीगर शवाहिद, मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें मिली तब पता चला कि ये मॉडल हुमैरा असगर अली की लाश है। और अब जो मजीद इस केस में जो पेशरफ सामने आई है ये पता कि ये लाश 6 माह से भी ज़्यादा पुरानी है और अक्टूबर 2020 में हुमैरा असगर अली का जो बिल्कुल राब्ता था वो मुनक़ता हो गया था। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिल ना भरने पर अक्टूबर के महीने की बिजली भी काट दी गई थी। इसके अलावा जो मुकम्मल तौर पर पुलिस ने सर्च किया है, मेडिकल लीगल अफसर दोबारा फ्लैट में गई थी तो वहाँ पर उनको ये पता चला कि फ्रिज में रखे हुए जो खाने थे या दीगर ऐसी अशिया थी जिन पर एक्सपायरी डेट होती है वो भी ये बता रही थी कि वो कितनी पुरानी एक्सपायरीज थी जो आज से तकरीबन 6-8 माह कबल वो ख़त्म हो चुके थे। तो इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये जो वाक़या जो पेश आया है, जो हुमैरा असगर अली की मौत वाक़या हुई है उसको 6 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका था। इसके साथ साथ मेडिको लीगल जो लेडी ऑफिसर है उसकी जानिब से ये भी बताया गया है कि लाश इस कदर पुरानी थी कि उसके घुटने के जो जॉइंट्स है वो तक गलना शुरू हो गए थे। जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो सबसे पहले जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। उसमें जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो साल भी जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो घुटने भी उनमें से एक है। कराची के इलाके गुलशन में आयशा खाश मिली तो वो भी इसी तरह शोबिस की चकाचौंध दुनिया में रहने वाले अचानक से अंधेरे में इस तरह चले गए। इसी तरह ये दूसरी शोबिस की दुनिया की खातून है जिसकी लाश मिली तो कई सवालात छोड़ गई है। और दोनों केसेस में एक बात मुमासलत रखती है कि दोनों की फैमिलीज की जानिब से पुलिस से ताउन नहीं किया गया। यहाँ पर भी हुमैरा असगर अली के भाई की जानिब से, वालिद की जानिब से यह तक कहा गया कि हमने उससे अपना कता ताल्लुक़ कर लिया था, 2 साल से हम उससे राब्ते में नहीं थे, ना हम लाश वसूल करेंगे ना हम मुकदमा दर्ज कराएंगे। जिसके बाद SSP महजूर अली SSP साउथ की जानिब से हमें बताया गया कि अगर इस जो लाश के जो अज़ा पोस्टमार्टम के बाद एग्जामिन करने के लिए महफूज किए हैं, अगर उसमें कोई कॉग्निजेबल चीज़ सामने आती है, यानी आसान ज़बान में उसको कहे, अगर कोई ऐसा कॉज ऑफ डेथ सामने आती है जिसमें पता चले कि कोई ये कत्ल का वाक़या था या इस तरह रखता हुआ, तो पुलिस सरकार मुद्दत में, स्टेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करेगी। लेकिन इस वक्त तक इस केस को हाई प्रोफाइल करार दिया गया है और पुलिस की जानिब से मुस्तकिल इस केस पर काम किया जा रहा है ताकि एटलीस्ट 1 से 2 दिन के अंदर वजह मौत मालूम की जा सके। जी ठीक है नज़ीर शाह, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे तफसीलन, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में शौहर ने बीवी को मुबैना तौर पर तेजाब पिलाकर कत्ल कर दिया। नूर आयशा को जुमेरात को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। खातून के वालिद ने शौहर अयूब और देवर रफ़ीक पर तेजाब पिलाकर मार डालने का इल्ज़ाम लगाया। मकतूला नूर आयशा की शादी 7 साल पहले अयूब से हुई थी। इनकी 2 बेटियां भी हैं। वालिद ने कहा 4 जुलाई को इत्तला मिली, दामाद और उसके भाई ने बेटी को तेजाब पिला दिया। मारपीट के बाद बेटी को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। FIR में कहा गया डॉक्टरों ने तेजाब की वजह से इन्फेक्शन और मौत की तस्दीक की है। नूर आयशा की कम उम्र बेटी ने भी वालिदा पर तशद्दुद की तस्दीक की। शादी करके यहाँ आई थी, अब सामान सड़क पर पड़ा है।
लियारी में गिरने वाली इमारत के मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। मुतासिरीन कहते हैं कोई बोल रहा है इधर जाओ तो कोई दूसरी तरफ भेज रहा है। दरबदर हो गए हैं, कुछ नहीं चाहिए, सर छुपाने के लिए जगह दे दो। रोटी रोटी से भी चले गए। अल्लाह के सवा हमारा कोई सहारा नहीं। तो बोल रहे ना कि हम घर तोड़ रहे, तो भाई घर भी दो ना, हम जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बोलते हैं उधर जाओ, वहाँ पे फाइल जमा करो, कोई क्या बोल रहा है। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, अभी हम उधर हैं। अभी हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कभी हम लोग जाएंगे कहाँ, किसके घर पे रहेंगे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मेरी शादी को 21 साल हुए हैं, तब से हम यहीं पर रह रहे हैं। सारा सामान रोड पे रख दिया हमारा, अब हम कहाँ जाएंगे। 3 भाई हैं, एक के तो पाँव नहीं होते, दूसरा भी बेरोजगार है। हुकूमत हमें कोई रोजगार दे या हमें अपना रश्का दिला दे। मेरा भी रश्का था, हम गया था सहरोजे में, ये मसला हुआ है, कमाने वाला एक ही नहीं। लियारी में गिरने वाली इमारत के बारे में बड़ा इंकशाफ। बिल्डिंग कंट्रोल ने वजीर आला को गिरने वाली इमारत का गलत प्लॉट नंबर बताया। वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं मकीनों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। मिनिस्टर साहब ने एक इजलास बुलाया, उसमें उस कमेटी ने नामुकम्मल सी कुछ रिपोर्ट पेश की। एक नई चीज हमारे सामने रखी कि ये इमारत जब आज से 40-50 साल पहले बनाई गई थी तो उसका कोई अप्रूवल नहीं दिया गया। SPCA में कोई पुराना रिकॉर्ड इस तामीर के मुतालिक मौजूद नहीं। फौरी तौर पर इमारत गिरी, इमीडिएटली जो रिपोर्ट मंगाई गई SPCA से, उस रिपोर्ट में उस इमारत का नंबर हमें भेजा गया जो ये इमारत नहीं है, वो इमारत कोई और है, वो वहाँ पर मौजूद है। खतरनाक इमारतों में उसका शुमार है। लियारी में इमारतें जो तोड़ी जा रही हैं, उन इमारतों के जो मकीन हैं, 3 महीने का किराया हुकूमत सिंध फराहम करेगी ताकि वो अपने लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर सके। गैर कानूनी तामीर होने वाली इमारतें, उनका नंबर बहुत ज्यादा है और हमारे पास रिसोर्सेज जो अफसरान की तादाद है वो कम है। जिन जिम्मेदारों का तयन उस कमेटी ने किया है उनके खिलाफ FIR आज है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश से तबाही। कोटली आज़ाद कश्मीर में सड़कें तालाब बन गई, नदी नाले बिफर गए। मोटरसाइकिल सवार पहाड़ी तोदे की जद में आकर चल बसा। भिम्बर के समाहनी नाले में पानी का तेज बहाव। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में आबी रेलों से राब्ता, सड़कों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। दरियाए चित्राल में सैलाबी सूरत हाल, ज़राई अराजी, राब्ता, सड़कें और मकानात ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद में शरीफाबाद नाला बिफर गया, नौजवान मोटरसाइकिल समेत बह गया। इस्लामाबाद में शरीफाबाद नाला ओवरफ्लो होने से नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में बह गया। कोरंग नाले में तुगयानी के बाइस पानी घरों में दाखिल हो गया। शेखुपुरा के इलाके मिर्जा वर्का में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। फैसलाबाद में पानी में डूबी सड़कें शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गईं। ओकाड़ा, रेनाला खुर्द, भावल नगर और हाफजाबाद में तेज बारिश से सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फराबाद की चेहलम वैली गोहराबाद के नाले में तुगयानी, पानी के बड़े रेले से 23 मकानात और 6 दुकानें मुकम्मल तबाह हो गयीं। कोटली में मूसलाधार बारिश ने सड़कें तालाब बना दी। मोटरसाइकिल सवार पहाड़ी तोदे की जद में आकर चल बसा। भिम्बर की सड़कों और गलियों में नदियां बहने लगीं, पानी घरों में भी दाखिल हो गया। समानी नाला में पानी के तेज बहाव में मोटरसाइकिल सवार बह गया, मौके पर मौजूद अफराद ने बचा लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में आबी रेलों से राब्ता कट गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। स्याह घटाएं ऐसे जमकर बरसी कि थोड़ी ही देर में लाहौर जलथल हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम नकासी आब के लिए वासा और दीगर इदारे सरगर्म नजर आए। उल्फत मुगल की रिपोर्ट। कई रोज से जारी हब्स और शदीद गर्मी में काली घटाएं जमकर बरसी, जिससे लाहौर का मौसम सुहाना हो गया। ठंडी हवाएं चली और शहरियों ने सुख का सांस लिया। थोड़ी देर की बारिश से शहर में जल थल एक हो गया। बारिश बरसते ही मुतलका महकमे सरगर्म हो गए और पानी की निकासी के लिए वासा समेत दीगर जिम्मेदार इदारों के मुलाजमीन फील्ड में काम करते हुए नजर आए। इस साइड पे बिल्कुल साफ सुथरा है, हर चीज साफ सुथरी है, रोड भी साफ है, मैं गाड़ी रिक्शा भी इधर ही चलाता हूँ। मानसून के हालिया सीजन में शहरियों को बारिश के पानी के बायस किसी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों का कहना है कि पंजाब हुकूमत के बरवक्त इकदाम की वजह से सूरत हाल बेहतर रही। स्टूडेंट बंदे हैं जो डेली कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना होता है। पहले तो इतना पानी था, बारिश होती इतना पानी खड़ा होता था,
आज आए हैं तो बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल राम सुकून से हैं। कितने पानी नज़र नहीं आया, आज इतनी बारिश हुई है, नहीं तो पानी पानी होना चाहिए था। सुबह का रोड में घूमने देखे, अभी भी लिबर्टी चौक में हम दोस्त आए हैं सारे, तो यहाँ पे कोई पानी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के सीवरेज, बारिश के पानी की निकासी और पानी को जाया होने से बचाने के लिए अरबों रुपए के मंसूबे तकमील के आखिरी मरहले में हैं, जिससे निकासी आब के साथ पानी को महफूज किया जा सकेगा। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ उल्फत मुगल, एयरवे न्यूज, लाहौर। बैरिस्टर सैफ का पंजाब हुकूमत पर 10 खरब की माली बेज़ाब्तगी का इल्जाम। केपी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा, पंजाब हुकूमत जवाब देने से कासिर है। ऑडिट रिपोर्ट ने मरियम नवाज की करप्शन पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। मरियम नवाज पंजाब के आवाम के 10 खरब रुपए डकार गईं। ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में जारी लूट मार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। तरक्याती मंसूबे सिर्फ कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। आवाम को 10 खरब का टीका लगाकर तरक्की के झूठे दावे किए जा रहे हैं। ये स्कैंडल तो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया, बाकी करप्शन इसके अलावा है। ये तो सिर्फ पहले साल की कहानी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें, आपकी क़यादत का कच्चा चिट्ठा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढिंडोरा पीट रहे हैं बुज़दार और परवेज़ इलाही दौर की है। सफ़ा नंबर 87 और 96 पढ़ लें, शायद थोड़ी शर्म आ जाए। जिस 10 खरब का वावेला कर रहे हैं 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। कौम जानती है 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी। जो लूटमार खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, 4 साल पंजाब में भी हुई। बुशरा बीबी और फराह गोगी के डाके और चोरियां रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ के कारनामों का अंजाम भी नेक्स्ट स्टॉप अडियाला नजर आ रहा है। सखर की अहम तरीन सड़क बंदर रोड बुरी तरह उखड़ गई। सड़क में जगह जगह सरिये बाहर आ गए। गाड़ियों के टायरों और इंजन को नुकसान पहुंच रहा है। आए रोज गाड़ियां और रिक्शे उलटते रहते हैं। नासिर जाफरी की रिपोर्ट। सखर शहर की अहम शाहराह बंदर रोड जगह जगह से टूटकर मजीद बिखर रही है। सड़क पर पड़े गहरे खड्डे शहरियों के लिए रोजाना आजमाइश बन चुके हैं। बरसात के बाद से ये रोड बंदर रोड से लेके थर्मल पुल तक टूटा हुआ है। हादसे इतने होते हैं। 2 दफा हमारे सामने यहाँ जंबो कल्टी हुई है, सामान की भरी हुई। दुआ चौक से थर्मल पावर हाउस तक सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। थर्मल मोड़ पर सड़क से सरिये बाहर निकल आए हैं। पुल के नीचे जाके देखो, सरिये वगैरह गाड़ियों में लगे हैं। 2-4 दफा तो मेरी अपनी गाड़ी में लगा है, वो टायर बस्ट हो गया। हादसे भी ऐसे होते हैं, पुलिया के नीचे जंप बना हुआ, उसके सरिये निकले हुए, वो जाके इंजन के अंदर लगते हैं। शहरी कहते हैं कि बंदर रोड की ये तबाहाली हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि टूटी फूटी सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाए ताकि शहरी हादसा से महफूज रह सकें। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़, सखर। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 3 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेफ्रा ने महाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती की। नोटिफिकेशन में बताया गया बिजली सार्फिन को जुलाई के बिलों में रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अप्रैल की महाना एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती की गई। के इलेक्ट्रिक ने 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। नेप्रा ने 4 रुपए 3 पैसे कमी की मंजूरी दी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए मई की एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 50 पैसे सस्ती की गई। और आपको खबर दें कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने रावलपिंडी के शहरी की नींदें उड़ा दी। रावलपिंडी धमियाल के रिहायशी को 1 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद का बिल भेज दिया। तो आपको बता रहे हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने रावलपिंडी के शहरी की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। रावलपिंडी धमियाल के रिहायशी को 1 करोड़ 23 लाख रुपए से जायद का बिल भेज दिया है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे बाबर मलिक से। बताएगा बाबर। जी बाबर, तो आपको बता रहे हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का यह कारनामा रावलपिंडी के शहरी की नींदें उड़ा दी हैं। और जी हाँ, ये होशरुबा बिल भेजा गया रावलपिंडी के शहरी को, जिसका देखते ही शहरी के होश उड़ गए। घर का बिल देखकर अल्लाह देता राजा की होश उड़ गए। और अभी इस हवाले से, इस इतने बड़े बिल के हवाले से
महकमा सुई गैस के तर्जुमान का कहना है कि ये हो सकता है कि कंप्यूटर का एरर हो, ताहम इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। लेकिन इस 1,25,00,000 के बिल ने शहरी के होश उड़ा दिए। दिन रात ये परेशान इधर उधर घूम रहे हैं और ये महकमा सुई गैस के दफ्तर का भी उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन तर्जुमान का कहना है कि इस हवाले से तहकीकात और इस बिल को चेक किया जा रहा है। जी ठीक है, बाबर मलिक, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मोहसिन नकवी ने एहसामुल हक को टेनिस के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। लाहौर में चेयरमैन PCB और सदर टेनिस फेडरेशन की मुलाकात हुई। एहसाम ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुताल्लिक मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मसाइल के हल के लिए मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी की। कहा, क्रिकेट की तरह मुल्क में टेनिस का भी बेपनाह टैलेंट है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।